Good day, students. Last time we had started with the essay The Argumentative India, and today we'll continue from there. Before starting, let's recall what we had studied so far. In this, Amartya Sen has said that prolixity, the word, is not foreign to us Indian. Prolixity means long talk. So he's saying that long talk was not foreign to us, and then he gave us example of Krishna Menon, who has given the longest speech ever given in United Nations, that was of 9 hours. Later, he talks about the significance of dialogues and argumentative nature that Indians have. He said that this argumentative tradition has been going for such a long time, and he gave the example of Krishna and Arjuna from Gita. He particularly take the part of Gita where Krishna and Arjuna is having a debate. In that, Arjuna shows the concern about the consequences they would have of the war. Seeing the doubts in the mind of Arjuna, Krishna emphasizes on the duty that he has to play as a general of his army and the people that are relying on him for the guidance. Later, Krishna's views of doing one's duty was endorsed or promoted by many of the foreigners. Christopher Isherwood was one of those who followed his ideas, and later on he was the first one who translated Gita in English. T.S. Eliot was also one of the famous authors who had used the word of Krishna, and in that he has said that not farewell but fare forwards. उन्होंने ये कहा था that you don't have to think about consequences, you only have to move forward. Then we have Robert Oppenheimer, who was the leader of American team, who also justify his point of view, justify his action of developing atomic bombs, saying that it was his duty towards his country and he was doing only his job. So he's saying that this was the reason why he has mentioned this, because through these points he wanted to explain that yes, doing one's duty is important, but we should not get blind eye towards the concern of Arjuna. He said that arguments that Arjun have put up during the debate is relevant also in the contemporary world. That even in current time, his arguments that he has present to Krishna is also relevant, also important. Now today we will start with gender, caste and voice. Now जेंडर कास्ट एंड वॉइस. नाउ हियर व्हाट इज ऑथर इज सेइंग, जो अमर्त्य सेन है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन जो हमारा चला आ रहा है, जेंडर कास्ट एंड वॉइस, क्या ये तीनों जो चीज़ें हैं, जेंडर कास्ट एंड वॉइस, दैट इज लिंग, जाति और वॉइस का मतलब आवाज़. तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं क्या ये तीनों चीज़ें आर्गुमेंटेटिव इंडिया का इन पे कोई असर हुआ था क्या? जो हमारा ट्रेडिशन है वो जेंडर से लेके, कास्ट से लेके, वॉइस से लेके क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है. वॉइस से यहाँ पे क्या मतलब है? वॉइस से यहाँ पे मतलब है कि किन किन लोगों ने आर्गुमेंटेटिव इंडिया, यानी कि किन किन लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, और वो लोग कौन थे. लेट्स स्टार्ट. There is however a serious question to be asked as to whether the tradition of argument and disputation have been confined to an exclusive part of Indian population, perhaps just the member of male elite. अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोचने वाला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है आर्गुमेंटेटिव इंडिया का, वाद विवाद का, तर्क वितर्क का जो हमारा ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, क्या ये सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर कन्फाइंड है, कुछ ही लोगों के अंदर समापित है क्या ये? तो बोल रहे हैं कि शायद ये जो हमारा ट्रेडिशन है, ये जो हमारा आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन है, ये सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं. और ये कुछ लोग कौन है? ये कुछ लोग वह आदमी है, वह मेल्स हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? जो उच्च कोटि श्रेणी से बिलोंग करते हैं. It would of course be hard to expect that argumentation of all participation would be uniformly distributed all over segment of the population. अब वो बोल रहे हैं that it would of course be hard to expect, कि ये उम्मीद करना कि क्या है, जो ये ट्रेडिशन है, आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन जो हमारे इंडियंस का चला आ रहा है, वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हर जाति, हर लिंग और हर कास्ट में क्या होगा? यूनिफॉर्मली बराबर से सब लोगों का क्या रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, पार्टिसिपेशन रहा होगा. इस चीज़ की उम्मीद करना क्या है? बेवकूफ़ी है. क्यों?
बिकॉज इंडिया हैड डीप इनक्वालिटीज़ अलॉन्ग द लाइन्स, क्योंकि इंडिया में जेंडर को लेके, क्लास को लेके, कास्ट को लेके, कम्युनिटी को लेके, यानी कि लिंग को लेके, है ना, जाति को लेके, समुदाय को लेके हमेशा से क्या रहा है, इनइक्वालिटीज़, भेदभाव रहा है। तो जब इस बीच में क्या है, भेदभाव है, तो ये उम्मीद करना कि इन सब का पार्टिसिपेशन, इन सब का योगदान क्या होगा, बराबर होगा, ये सोचना क्या है, गलत है, बेवकूफ़ी है। The social relevance of the argumentative tradition would be severely limited if disadvantaged section were effectively barred from participation. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है वो क्या हो जाता, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाता, बहुत ही ज़्यादा कम रह जाता, छोटा रह जाता, अगर क्या होता, अगर ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो इफेक्टिवली, ये जो डिसएडवांटेजेस पीपल हैं, है ना, ये जो डिसएडवांटेजेस यानी कि ये जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, निम्न जाति के जो वो लोग हैं, अगर इन लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसमें योगदान नहीं होता या भागीदारी नहीं होती, तो हमारा जो ये ट्रेडिशन है वो क्या हो जाता, सीमित रह जाता। The story here is, however, much more complex than a simple generalization can capture. अब बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे जेंडर, कास्ट और कम्युनिटी की बात करें तो ये क्या है, ये जो स्टोरी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता है। आई बिगिन विद जेंडर, और वो सबसे पहला जो चीज़ लेते हैं वो क्या लेते हैं, जेंडर लेते हैं, लिंग अंतर की बात करते हैं वो, और उसी के बारे में बताते हैं। There can be little doubt that men have tended by and large to rule the roost in argumentative moves in India. अब वो बोल रहा है कि there can be little doubt, कि इस बात का तो कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी योगदान रहा है वो किसका रहा है, मेल्स का रहा है। But despite that, the participation of women in both political leadership and intellectual pursuit has not been at all negligible. लेकिन भले ही उनका क्या रहा है, उनका योगदान, उनकी भागीदारी, मेल्स की जो है, पुरुषों की भागीदारी है वो औरतों से ज़्यादा रही है, लेकिन औरतों की भागीदारी को अनदेखा कर देना क्या होगा, गलत होगा, स्पेशली किस में, स्पेशली पॉलिटिकल लीडरशिप और इंटेलेक्चुअल परस्यूट में। ऐसा कहा जाता है कि वुमेन्स जो है, औरतें जो हैं, वो क्या नहीं कर सकती, एक अच्छी लीडर, एक अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल की बात करी है, और दूसरी इंटेलेक्चुअल। और ये भी माना जाता था कि जो वुमेन्स है वो क्या है, पुरुषों के जितनी समझदार या पुरुषों के जितनी स्मार्ट नहीं हुआ करती थी, समझदार नहीं हुआ करती थी, इसलिए इन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। दिस इज़ ऑब्वियस इनफ टूडे, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स। और ये चीज़ क्या कर रही है जा रही है, ये चीज़ आप आज के समय में देख सकते हैं, क्या चीज़, कि जो औरतें हैं उनका योगदान भी क्या रहा है, हमेशा से पॉलिटिकल में रहा है। और आज की, अगर आप आज की पॉलिटिकल या फिर आज के आप प्रजातंत्र या फिर हमारे सरकार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा लेडीज़ हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारे सीएम में ही देख लीजिए कि क्या है, हमारे सीएम कौन रही थी पिछली बार की, वसुंधरा राजे, उसके बाद ममता बनर्जी है, सरोजिनी नायडू है, ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे वुमेन्स लीडर हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि आज के ज़माने में, अगर आप आज के समय में देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वुमेन्स दिखेंगी जो क्या कर रही हैं, एक बहुत अच्छा नेतृत्व जो इस देश का कर चुकी हैं या कर रही हैं। Particularly in politics, indeed, many of the dominant political parties in India, national as well as regional, are currently led by women and have been led in the past. अब जैसा कि हमने कहा था कि क्या है, अमर्त्य सेन क्या करते हैं, अपनी किसी भी बात को प्रूफ, मतलब कोई भी बात अगर वो करते हैं तो वो क्या देते हैं, उसका प्रूफ देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात रखी, क्या बात रखी, कि जो इंडियन वुमेन्स है उन्होंने हमेशा से क्या करा है, हमेशा से पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में पार्ट लिया है। अब वो इसका एग्जाम्पल किससे दे रहे हैं, वो उसका एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, उसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि अगर आप आज की पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब बोलते हैं, इंडीड मैनी ऑफ द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडियन नेशनल एज वेल एज रीजनल आर करंटली लेड बाय वुमेन।
और बोलते हैं कि आज के ज़माने में जो नेशनल लेवल पे या फिर जो क्षेत्रीय रीजनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी वुमेंस, बहुत सारी लेडीज़ दिखेंगी जो क्या कर रही हैं, उस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं. But even in the national movements for Indian independence led by Congress party, there were many more women in the position of the importance than Russia and Chinese revolution movement put together. अब वो क्या कर रहे हैं, वो हमारा कंपैरिजन रशिया और चाइनीज़ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से कर रहे हैं कि जिस समय रशिया और चाइनीज़ में क्या हो रहा था, रिवॉल्यूशन चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे, फ्रीडम के लिए फाइट चल रही थी, स्वतंत्रता के लिए जब उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उस समय क्या था, उनका जो वुमेंस पार्टिसिपेशन था, जो औरतों का योगदान था, वो हिंदुस्तान के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम था. तो वो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि जो वुमेंस थी हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो क्या थी, रशियन और चाइनीज़ दोनों को मिला के जितनी वहाँ पे लेडीज़ नहीं थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा लेडीज़ कहाँ पे थी, इंडिया में, जंग में, इंडिया में थी, जो क्या कर रही थी, हर रिवॉल्यूशन में भाग ले रही थी. It also perhaps worth nothing that Sarojini Naidu, the first woman president of Indian National Congress, was elected in 1925, 50 years earlier than the election of first woman leader of major British political party. अगेन हम वो बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे यहाँ की लेडीज़ क्या है, कितनी इंटेलेक्चुअल, कितनी स्मार्ट और पॉलिटिकली कितनी बेहतर हैं. इसका वो एक और एग्जाम्पल कैसे देते हैं, वो बताते हैं हमें कि किस तरह जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही थी नेशनल कांग्रेस की, सरोजनी नायडू, वो कब बनी थी, वो 1925 में बनी थी, जो क्या है 50 साल पहले है किसी भी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी की वुमेन लीडर से. यानी कि जब पहली बार ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी में एक वुमेन लीडर को, एक ऐसी लीडर को चुना गया था जो क्या है, औरत है, वो कब चुना गया था, 1975 में. और जो हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो क्या है, उनसे 50 साल आगे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला लीडर सेलेक्ट किया गया था वो कब किया गया था, 1925 में किया गया था. तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहे हैं. द सेकेंड वुमन हेड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेली सेनगुप्ता, वॉज इलेक्टेड इन 1933. इवन जो हमारी सेकेंड वुमन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर, वो भी कब चूज़ हुई थी, 1933 में. वो भी क्या था, जो मार्गरेट थैचर थी, उनसे बहुत ज़्यादा पहले सेलेक्ट हो चुकी थी. तो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, वहाँ पे भी क्या है, वुमन पॉलिटिकली अच्छे तरह से काम करना जानती हैं, पॉलिटिक्स में काम करना जानती है, लीडरशिप करना जानती है, नेतृत्व करना जानती हैं. अर्लियर और लेटर दिस डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स. अब बोलते हैं अर्लियर और लेटर, भले हम आज की बात करें या हम पहले की बात करें, ये जो इवेंट्स है वो क्या है, रिसेंट टाइम के इवेंट्स है, यानी कि ये हमारे ही समय की बातें हैं, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हैं. बट वॉट अबाउट डिस्टेंस पास्ट, लेकिन अगर मैं डिस्टेंट पास्ट यानी कि और पीछे जाऊँ तो क्या उस समय भी लेडीज़ की पोजीशन सेम थी, ये वो पूछना चाहते हैं. Women's traditional role in debate and discussion has certainly been much less pronounced than that of men in India. अब वो बोल रहे हैं कि जितना प्रचार और प्रसार मेल्स की, पुरुषों के तर्क वितर्क के बारे में किया गया है, वुमेंस के बारे में, वो जो महिलाएं हैं उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है या उतना उनको प्रमोट नहीं किया गया है. But it would be mistake to think that the vocal leadership by women is completely out of line with anything that has happened in the Indian past. लेकिन ये सोच लेना कि इंडिया का जितना भी पास्ट है उसमें वुमेंस ने कोई भी रोल नहीं प्ले किया है या किसी भी तरह का कोई भी नेतृत्व नहीं किया है, तो ये क्या होगी, आपकी सबसे बड़ी गलती होगी. Indeed, even if we go back all the way to ancient India, some of the most celebrated dialogues have involved women. अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, अगर आप क्या करोगे, एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की अगर आप बात करो तो उसमें जो मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स यानी कि मोस्ट फेमस जो डायलॉग्स हैं, मोस्ट फेमस डायलॉग्स हैव इन्वॉल्व वुमन, उसमें क्या रहा है, हमेशा वुमन की, हमेशा औरतों की भागीदारी रही है. विद द शार्पेस्ट क्वेश्चनिंग ऑफन कमिंग फ्रॉम वुमन इंटरलॉकर्स. और कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्राचीन समय की बहस को या किसी भी प्राचीन समय के वाद विवाद को या डिबेट को निकाल के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे तीखे प्रश्न आए हैं वो हमेशा से किसकी तरफ से आए हैं, वुमेन्स की तरफ से, औरतों की तरफ से आए हैं.
This can be traced back even in Upanishads, the dialectal treatises that were composed from about the 8th century BCE, which are often taken to be the foundation of Hindu philosophy. अब क्या कह रहे हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तीखे प्रश्न किससे आते हैं, औरतों से आते हैं, वुमन से आते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसकी अगर आप इसकी पूर्ति करना चाहते हो, अगर आप इसके लिए इसके पीछे सच्चाई ढूंढना चाहते हो, तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, आपको हमारे उपनिषद्स में देखना पड़ेगा, जो कहाँ है, जो एक डायलेक्टल ट्रीटीज थी, यानी कि वो कब लिखी गई थी, करीबन 8 सेंचुरी बीसी, यानी कि बीसी के भी 8 सेंचुरीज पहले लिखी गई थी, जो क्या है, हमारे हिंदू फिलोसॉफी का क्या रहे हैं, बेस रहा है, फाउंडेशन रहा है। यानी कि अगर आप हमारे पुराने उपनिषद भी निकाल के देख लेंगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, उसमें भी आपको वुमन का रोल, वुमन को बहस करते हुए आपको देखने को मिलेगा। For example, in Bihadranayaka Upanishad, we are told about the famous arguing combat in Yajnavalkya. The outstanding scholar and teacher has to face question from the assembled gathering of Pandit, and here it is a woman scholar, Gargi, who provide the sharpest edge to the intellectual interrogation. अब क्या हुआ था, यहाँ पे जो उपनिषद है हमारे पास बृहद्रनायका, उसका एक इंसिडेंस बताया जा रहा है कि क्या थे, जब राजा जनक क्या बने थे, महाराजा बने थे, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देश के जितने भी विद्वान हैं उन्हें क्या करा जाए, इकट्ठा किया जाए, ताकि उनसे क्या ली जाए, कुछ अच्छी राय या कुछ अच्छा ज्ञान लिया जाए। तो उस पे जो यज्ञवल्क्य थे उन्होंने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, एक यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं और जितने भी विद्वान हैं वो इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। तो जब यज्ञ का आयोजन हुआ था तो वहाँ पे जो ये यज्ञवल्क्य थे उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर सबसे ज़्यादा विद्वानों का विद्वान है वो आगे आए, और जो भी आगे आएगा वो क्या कर सकता है, जीत में मेरी 1000 गाय अपने साथ ले जा सकता है। जब कोई भी उनके सामने नहीं आया तो जो यज्ञवल्क्य थे वो अपने दास को कहते हैं कि ये सारी 1000 गाय लेके हमारे आश्रम में ले चलो। तो जो बाकी पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उनसे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान कैसे समझते हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, अगर मुझे उसका जवाब नहीं आया तो ये 1000 गाय आप रख सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी विद्वान थे वो क्या करते हैं, उनसे एक एक करके प्रश्न पूछने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जो यज्ञवल्क्य होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही विनम्रता से उन सबके जवाब दे देते हैं। तो जब ये बहस चल रही होती है, जब ये वाद विवाद चल रहा होता है, या जब ये इंटोग्रेशन चल रहा होता है, क्वेश्चनिंग चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गार्गी नाम की स्कॉलर होती है, एक लेडी होती है, एक लड़की होती है जो सिर्फ 18 साल की होती है, और वो भी क्या होती है, एक क्या होती है, स्टूडेंट होती है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे क्या होती है, वो बोलती है कि मैं भी क्या चाहती हूँ, अगर आप लोगों की जितने भी यहाँ पे विद्वान बैठे हैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं क्या करना चाहूँगी, इनसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह से जब ये इंटोग्रेशन चल रहा था, जब यहाँ पे इस तरह के प्रश्न यज्ञवल्क्य से पूछे जा रहे थे, तब जो गार्गी थी, जब गार्गी ने उनसे प्रश्न करना शुरू किया तो ये माना जाता था कि जो गार्गी के प्रश्न थे वो क्या थे, बाकी सारे विद्वानों से सबसे ज़्यादा तीखे, नोकीले या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, शार्पेस्ट क्वेश्चन थे। यानी कि उनके जो क्वेश्चंस थे वो लिटरली क्या कर रहे थे, जो यज्ञवल्क्य हैं उनको सोचने पे मजबूर कर रहे थे। उनके इंटेलेक्चुअल, उनकी बौद्धिक क्षमता पे क्या थे, बौद्धिक क्षमता पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थे। शी एंटर्स द फ्रे विदाउट एनी स्पेशल मॉडेस्टी। वो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी यानी कि बहुत ज़्यादा तान बन के नहीं आती है, वो बहुत ही सिंपल से तरीके से बोलती है। वेनरेबल ब्राह्मण्स, यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, विथ योर परमिशन, आपकी परमिशन से, आपकी इजाज़त हो तो आई शेल आस्क 2 क्वेश्चन ओनली। मैं क्या हूँ, मैं यज्ञवल्क्य से सिर्फ 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इफ़ ही इज़ एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर वो मेरे इन 2 प्रश्नों के जवाब दे देंगे, देन नन ऑफ यू कैन एवर डिफीट हिम, तो आप में से कोई भी इनको बौद्धिक क्षमता में तो मात नहीं दे पाएंगे।
अब क्या होता है, जब वो उनसे 2 प्रश्न पूछती हैं तो ये जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जवाब तो दे देते हैं, लेकिन जो ये 2 प्रश्न गार्गी पूछती है वो बाकी सारे प्रश्नों से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा तीखे नोकीले थे. Even though Gargi as an intellectual and pedagogue is no military leader in the mode, for example, of Rani of Jhansi, another feminine hero, fought valiantly along with the mutineers of the middle of the 19th century against the British rule, one of the great warrior queen of the world, as Antonin Fraser has described her. Her use of imagery is striking militant. Yagyavallkya, I have 2 questions for you. Like the ruler of Videha or Kashi, coming from heroic line, who string his unstrung bow, take in hand 2 penetrating arrow and approaches the enemy, so do I approach you with 2 questions which you have to answer. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो गार्गी थी वो क्या थी, एक इंटेलेक्चुअल यानी कि एक स्कॉलर थी, पढ़ने वाली लड़की थी. इज़ नो मिलिट्री लीडर, वो किसी भी तरह की मिलिट्री लीडर नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल ऑफ रानी, और वो बोल रहा था मिलिट्री लीडर यानी कि किसके जैसी, झांसी की रानी की तरह कोई मिलिट्री लीडर नहीं थी, ना उसको लड़ने वड़ने आता था, ना उसको किसी तरह की ऐसी कौशल थी उसमें जिसमें वो क्या कर सके, लोगों से जंग लड़ सके जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी. Rani of Jhansi, another feminine hero, fought valiantly along with the mutineers in the middle of 19th century. अब वो रानी झांसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो क्या है, बहुत ही वैलेंटली, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली उन्होंने क्या किया था, 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था. उनको वॉरियर क्वीन भी कहा जाता है, और ये नाम किसने दिया था उनको, ये जो उपाधि है वो उनको एंटोनियो फ्रेसर ने दी थी. तो बोल रही हैं कि जिस तरह से क्या है, जिस तरह से झांसी की रानी जो क्या है एक मिलिट्री वॉरियर है, क्वीन है, उस तरह से जो गार्गी है वो कोई मिलिट्री लीडर नहीं है, वो क्या है, एक आम स्टूडेंट है. लेकिन जो उन्होंने प्रश्न याज्ञवल्क्य से पूछे थे वो क्या थे, किसी वॉरियर की तरह, किसी मिलिट्री लीडर से कम नहीं थे. वो उनको बोलती हैं याज्ञवल्क्य, आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू. वो बोलती है याज्ञवल्क्य, मेरे पास आपके लिए 2 प्रश्न हैं. लाइक द रूलर ऑफ विदेहा और काशी, कमिंग फ्रॉम हीरोइक लाइन, हु स्ट्रिंग हिज अनस्ट्रंग बो, टेक इन हैंड 2 पेनिट्रेटिंग एरोज एंड अप्रोच द एनिमी, सो डू आई अप्रोच विथ यू 2 क्वेश्चन. और उनकी इमेजरी यानी कि 12th क्लास हमने इमेजरी पढ़ा है, क्या होता है, हम लोग एक्चुअल वर्ड्स की जगह क्या बताते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं वर्ड्स से, ठीक है. तो इनकी जो इमेजरी की पावर थी, जो यूज़ था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. तो जब वो याज्ञवल्क्य के पास आती हैं तो उनको बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पास 2 प्रश्न ऐसे लेके आ रही हूँ जिस तरह जो विदेहा के राजा थे, काशी के राजा थे, जो क्या करते थे, लड़ाई करने के लिए जिस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में धनुष की रस्सी को बांधते हुए दुश्मनों की तरफ अपनी तीरों को लेके बढ़ रहे हैं, उसी तरह मैं तुम्हारी तरफ क्या बढ़ रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अपने 2 प्रश्नों को लेके बढ़ रही हूँ. याज्ञवल्क्य डज हाउएवर मैनेज टू सेटिस्फाई गार्गी विथ हिज आंसर. अब क्या होता है, जब वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो जैसे तैसे कम से कम गार्गी को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर पाते हैं. I am not competent to examine the theological merits of this interchange and will refrain from commenting on the substantive content of their discussion. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि मैं क्या हूँ, अभी तक इतना ज़्यादा मैंने कॉम्पिटेंट या अभी तक इतना ज़्यादा मैंने हासिल नहीं किया है, इतनी ज़्यादा मेरे में समझ नहीं है कि मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को या फिर ऐसे इंटरचेंज को क्या कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ. Gargi acknowledged this handsomely, but again without undue modesty. Venerable Brahmins, you should consider it an achievement if you can get away after bowing to him. Certainly, none of you can ever defeat him in expounding the nature of God. अब क्या होता है, जो गार्गी होती है वो अपनी हार पूरी मतलब बहुत हैंडसमली यानी कि बिना किसी शर्म के एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, क्या है, सामने जो याज्ञवल्क्य है उन्होंने क्या करे, उनके जवाब दे पाए हैं. और फिर वो क्या करती है, बाकी विद्वानों की तरफ मुड़ती है और उनको बोलती हैं कि यू शुड कंसिडर इट अचीवमेंट. तुम्हें क्या समझना चाहिए, तुम्हें तो ये तुम्हारे लिए ये गौरव की बात है कि तुम किसके सामने खड़े हो, तुम याज्ञवल्क्य के सामने खड़े हो. अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इनके सामने खड़ा होना ही क्या है, बहुत बड़ी बात है. तुम में से कोई भी क्या नहीं कर सकता, इनको डिफीट नहीं कर सकता, इनको नहीं हरा सकता. इंटरेस्टिंगली याज्ञवल्क्य
wife, Maitreyi raises a profoundly important motivational question when the two discuss the reach of wealth in the context of the problem and predicament of human life. In particular, what wealth can or cannot do for us. अब उन्होंने क्या बोला था, हमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे. तो अब ये सेकंड एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट बहस जो हमारे क्या है हिंदूज़ में, हमारी फिलोसॉफी में हमको नज़र आती है, उसमें से जो उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है, यज्ञवाल्क्य और उनकी वाइफ मैत्रेयी के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें जो बहस हुई थी वो क्या दिया है, उसका दूसरा एग्जाम्पल दिया है. अब इसमें क्या बात चल रही है, इसमें जो यज्ञवल्क्य है और उनकी वाइफ है उनके बीच में क्या चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, बातें चल रही हैं. और उसमें जो उनकी वाइफ होती है मैत्रेयी, वो क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनसे क्वेश्चन पूछती हैं और वो बोलती हैं कि वेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रेडिक्टमेंट ऑफ लाइफ. वो बात करती हैं कि किस तरह पैसा क्या है, क्या पैसा हमारी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं क्या वो पैसों से दूर हो सकती है या नहीं हो सकती, कि पैसों का क्या मूल्य है एक इंसान के जीवन में, कि पैसा हमारे लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. मैत्रेयी वंडर्स वेदर इट कुड बी द केस दैट इफ द होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ वर टू बिलोंग जस्ट टू हर शी कुड अचीव इमॉर्टलिटी थ्रू इट. जो मैत्रेयी होती है वो अपने हस्बैंड से, यज्ञवाल्क्य से पूछती है कि अगर क्या हो, दुनिया की, पूरी अर्थ की, पूरी पृथ्वी में जितनी भी रिचनेस है, जितनी भी अमीरी है, जितना भी पैसा है, अगर वो सब किसका हो जाए, अगर वो सब मैत्रेयी का हो जाए तो क्या वो उस पैसे से कभी इमॉर्टलिटी या फिर कभी भी अमरता ले सकती हैं क्या, क्या अमर वो हो सकती हैं क्या. नो रेस्पॉन्ड टू यज्ञवाल्क्य. तो यज्ञवाल्क्य उनको बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. लाइक द लाइफ ऑफ रिच पीपल विल बी योर लाइफ. वो बोलते हैं कि नहीं, तुम इमॉर्टलिटी, अमरता तो हासिल नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी किसकी तरह हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी भी बाकी के अमीर लोगों की तरह हो जाएंगी. बट देयर इज़ नो होप फॉर इमॉर्टलिटी बाय वेल्थ. लेकिन फिर वो बोलते हैं लेकिन तुम पैसों से क्या नहीं हासिल कर सकती, तुम पैसों से अमर जीवन हासिल नहीं कर सकती. मैत्रेयी रिमार्क्स, व्हाट शुड आई डू विद दैट बाय विच आई डू नॉट बिकम इमॉर्टल. तो बोलती है कि मैं उस चीज़ का क्या करूं जिससे मैं इमॉर्टल नहीं बन सकती, यानी कि मैं उन चीज़ों का क्या करूं जिससे मुझे अमरता, जिससे मैं अमर हमेशा के लिए नहीं हो सकती. मैत्रेयी rhetorical question has been repeatedly cited in Indian religious philosophy to illustrate both the nature of human predicament and the limitation of the material world. अभी जो मैत्रेयी के जो क्वेश्चन थे वो हमेशा से क्या करा है, हमारे इंडियन रिलीजन में, हमारे धर्म में हमेशा से इनकी बातों को कोट किया गया है, बार बार इनके शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. कब, स्पेशली वो सिचुएशन बताने के लिए जहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा सीमित रह गया है. इसमें जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मैत्रेयी का एग्जाम्पल ज़रूर लेते हैं, मैत्रेयी के तर्क को ज़रूर जगह देते हैं. बट देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सचेंज दैट हैज़ इन सम वे more immediate interest. This concerns the relation and the distance between income and achievement, between the commodities we can buy and the actual capabilities we can enjoy. अब जहाँ पे पैसे की बात आ रही है तो वो बोलते हैं कि दिस कंसर्न द रिलेशन द डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड अचीवमेंट. अब यहाँ पे क्या रहा है, जब पैसे की बात कर रहे हैं तो वो हमको दो चीज़ों के बीच में अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं. अंतर किस में, इनकम और अचीवमेंट में. आपकी क्या पैसा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो और आपने कितना अचीव या फिर आपने कितनी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं. तो इन दो चीज़ के बीच में वो क्या बोल रहे हैं, इन दो चीज़ के बीच में वो हमें अंतर बता रहे हैं. वो बोलते हैं दिस कंसर्न द रिलेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड अचीवमेंट, बिटवीन द कमोडिटीज वी कैन बाय एंड द एक्चुअल कैपेबिलिटीज वी कैन इंजॉय. अब वो क्या बोल रहे हैं कि है ना, जो पैसा है, इनकम है, उससे हमको क्या मिलती है, कमोडिटीज़, हमारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी हो सकती है, हम उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या है, हम क्या इंजॉय करते हैं, वो भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे अचीवमेंट्स पे, हमारी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है. बिटवीन आर इकोनॉमिक वेल्थ एंड आर एबिलिटी टू लिव एज वी वुड लाइक. अब क्या है, बिटवीन आर इकोनॉमिक वेल्थ एंड आर एबिलिटी टू लिव. अब वो क्या डिफरेंस बता रहा है, वो कैपेबिलिटीज़ और
अचीवमेंट में ये डिफरेंस है कि इनकम और अचीवमेंट में ये डिफरेंस है कि इनकम से आप क्या कर सकते हो, इनकम से आप इकोनॉमिक वेल्थ यानी कि पैसा ले सकते हो, आप एक आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन अचीवमेंट से आप क्या कर सकते हो, अचीवमेंट से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, आप एक खुशी भरी ज़िंदगी जी सकते हो। Our ability to live as we like. While there is connection between opulence and our ability to achieve while there is a connection between opulence and our ability to achieve what we value, the linkage may or may not be very close. अब वो क्या बोल रहे थे, कनेक्शन बिटवीन opulence and our ability to achieve what we value, वो बोल रहा है कि हम वो चीज़ जो हम वैल्यू करते हैं, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहती है, हम उसको किस तरह से अचीव करते हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्यूज वर्ल्डली वरीज माइट वेल हैव सम ट्रांसेंडेंटल रिलेवेंस। वो बोल रही है कि शायद मैत्री के जो शब्द है उनका क्या है, आज के ज़माने में भी क्या है, रिलेवेंस है। बट दे सर्टेनली हैव वर्ल्डली इंटरेस्ट एज वेल। लेकिन वो क्या है, अभी भी रिलेवेंट है। If we are concerned with the freedom to live long and live well, our focus has to be directly on life and death and not just on wealth and economic opulence. अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हमारे जीवने का जो लक्ष्य है वो क्या है कि हम बहुत देर तक और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिएं, तो सिर्फ पैसा कमाना क्या है, काफ़ी नहीं है। हमें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, हमें हमारी लाइफ और डेथ के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने से या इकोनॉमिकली अच्छे, आर्थिक रूप से अच्छे होने से कुछ भी नहीं होगा। The argument presented by the speaker in epics and classical tales or in recorded history do not always conform to the tender and peace-loving image that is often assigned to women. अब क्या वो बोल रहे हैं कि अगर आप क्या करोगे, अगर जो आप हमारे पास्ट के, इंडिया के पास्ट के बारे में देखोगे और जो फीमेल्स है, अगर आप उनके क्या करोगे, उनके आर्ग्यूमेंट्स देखोगे, उनकी जो बहस है, उनके जो तर्क है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो इमेज वुमेंस की क्रिएट करी जाती है, वुमेंस की इमेज कैसी करी जाती है, हमेशा सॉफ्ट बताया जाता है लेडीज़ को, है ना, उनको हमेशा नर्चरिंग वे में बताया जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप उनके आर्ग्यूमेंट्स देखोगे तो ये इमेज आपकी सामने, वो पीस लविंग इमेज आपकी नहीं रहेगी। In the epic story of Mahabharata, the good king Yudhishthira, reluctant to engage in a bloody battle, is encouraged to fight the usurpers of his throne with an appropriate anger, and the most eloquent instigator was his wife Draupadi. अब क्या हुआ था, जिस तरह से अर्जुन जो थे वो युद्ध पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, उस तरह एक समय में जो युधिष्ठिर होते हैं वो भी क्या थे, वो भी युद्ध पे जाने के लिए, महाभारत में फाइट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो द्रौपदी होती है वो उनके पास आती है और उनको ऐसे ऐसे शब्द कहती है, उनके सामने ऐसे ऐसे तर्क रखती है जो उनको क्या कर देते हैं, गुस्से से भर देते हैं। और उस गुस्से में वो क्या करते हैं, बैटल पे जाते हैं और वो बैटल जीत के आते हैं, वो जंग जीत के आते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या बताया है, अगेन यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो लेडीज़ हैं वो क्या रही हैं, उनके जो वर्ड्स रहे हैं वो हमेशा से क्या रहे हैं, शार्प रहे, तीखे रहे, उनके बोल हमेशा कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमको किन किन का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने यहाँ पे हमको 3 लोगों का एग्जाम्पल दिया, गार्गी, सेकेंड मैत्री और थर्ड द्रौपदी। In the 6th century version of this dialogue presented in कृत्रजुनिया बाय भारवी, द्रौपदी स्पीक दस, और वो बता रहे हैं कि द्रौपदी ने उसमें क्या बोला था। फॉर अ वुमन टू एडवाइज मैन लाइक यू इज़ ऑलमोस्ट एन इंसल्ट। वो बोलती हैं कि अगेन उनके शब्द क्या रहे, तीखे रहे, वो बोलती हैं कि फॉर अ वुमन टू एडवाइस मैन, कि एक औरत होने के बावजूद मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें राय दे रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कैसा करना चाहिए, ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अपमान है तुम्हारा, एक बहुत बड़ी इंसल्ट है तुम्हारी। देख रहे हो उनके वर्ड्स कितने ज़्यादा तीखे हैं, सीधे किसको लग रहे हैं, उनके मान को लग रहे हैं, उनके सम्मान को लग रहे हैं, सीधे उनके ईगो पे क्या करा जा रहा है, सीधे उनके ईगो पे वार किया जा रहा है। And yet my deep trouble compel me to overstep the limit of womanly contact, make me speak up. अगेन बहुत ही सार्केस्टिकली से, बहुत ही अच्छे से बोला गया है। क्या बोल रहे हैं वो,
कि येट माई डीप ट्रम्बल कंपेल, कि जब मैं तुमको देख रही हूँ तो ये चीज़ मुझे क्या कर रही है, कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है कि मैं अपनी वुमेनली कंडक्ट के, एक औरत को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, है ना, एक औरत जो क्या होती है, हमेशा घर में रहने वाली होती है, उसको अपनी मर्यादा लांघ के क्या करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, तुमको क्या देनी पड़ रही है, एडवाइस देनी पड़ रही है, जो क्या है, मेरे लिए सही नहीं है। द किंग ऑफ योर रेस ब्रेव एज इंद्र हैव फॉर लॉन्ग टाइम रूल्ड द अर्थ। वो उसको बोलती है कि क्या है, तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं, जो क्या रहे, इंद्र की तरह क्या रहे हैं, इंद्र की तरह ब्रेव, इंद्र की तरह बिना डर के उन्होंने क्या करा है, बिना डर के उन्होंने फाइट करी है, और बहुत समय से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रूल, यहाँ पे राज कर रहे हैं। बट नाउ विथ योर ओन हैंड यू मे थ्रो इट अवे, लेकिन अब क्या है, तुम्हारी वजह से शायद तुम अपने पूर्वजों का जितना भी कमाया हुआ सम्मान है उसे क्या कर दोगे, थ्रो अवे, फेंक दोगे, उससे अपना हाथ धो दोगे, हाथ धो बैठोगे। लाइक अ रटिंग एलिफेंट टीयरिंग ऑफ हिज गार्लैंड विथ हिज ट्रंक, जैसे कि क्या होता है, एक धुन में जाता हुआ जो हाथी होता है वो क्या करता है, खुद ही की सूंड से खुद ही के गले का हार क्या कर देता है, तोड़ देता है। उसी तरह तुम क्या कर रहे हो, खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। If you choose to reject heroic action and see forbearance as to the road of future happiness, then throw away your bow, the symbol of royalty। वो क्या बोलते हैं, अगर तुम क्या करो, ये जो हीरोइक एक्शन, यानी कि क्या है, तुम अगर क्या कर रहे हो, सच के लिए फाइट कर रहे हो, सच के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा हीरोइक एक्शन है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी फॉरबियरेंस की वजह से, तुम्हारी सोच की वजह से अगर तुम ये मौका जाने दोगे तो तुम्हें जो अपनी धनुष है, अपनी बो है, उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये किसकी निशानी है, क्योंकि ये एक रॉयल्टी की निशानी है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक क्षत्रिय की निशानी है जो तुम्हें क्या कर देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए, अगर तुम जंग करना ही नहीं चाहते हो। Wear your hair matted in knots, stay here and make offering in sacred fire। वो बोलती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने बालों में नोट्स बना देनी चाहिए, और तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बैठे बैठे अग्नि में ऑफरिंग्स डालनी चाहिए। नोट्स कौन बनाता है, मतलब वो बोल रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें संत बन जाना चाहिए, और तुम्हें क्या करना चाहिए, आग के सामने बस दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा क्षत्रिय होने का धर्म है वो तो तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो देख लो किस तरह से वो उनको क्या कर रही है, ईगो, उनके ईगो पे बार बार अटैक कर रही है। उनके हर शब्द क्या थे, उनके हर शब्द उनके ऊपर एक अटैक की तरह वर्क कर रहे थे, और जिससे वो क्या करते हैं, जिससे वो गुस्सा के युद्ध में चले जाते हैं। It's not hard to see which side द्रौपदी was on in the अर्जुना कृष्णा डिबेट। ये देखना मुश्किल नहीं है कि अगर हम अर्जुना और कृष्ण का डिबेट लें तो उसमें द्रौपदी किसकी तरफ होंगी। Which deal with the latter stage of the same sequence of event by which time Yudhishthir had made his choice to fight rather than embarrass the life of local hermit mockingly assigned to him by his wife with unconcealed tradition। अब जब हम बाद की लड़ाई देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, युधिष्ठिर ने क्या करा था, युधिष्ठिर ने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो क्या करते हैं, फाइट में चले जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पूरी ज़िंदगी उनकी वाइफ उनको क्या किसकी तरह देखे, वो पूरी ज़िंदगी उनकी वाइफ उनको एक हर्मिट की तरह, एक संत की तरह देखे। It is important not to see that the argumentative India tradition as the exclusive preserve of man. It is also necessary to understand that the use of argumentative encounters have frequently crossed the barrier of class and caste। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है, आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन, ये सिर्फ मेंस के लिए प्रिजर्व है, यानी कि ये जो हक है वो सिर्फ आदमियों को दिया गया है। ये सोचना क्या होगा, हमारे लिए गलत होगा। It is also necessary to understand that use of argumentative arguments have frequently crossed the boundaries of class and caste। और वो ये भी बोलते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंटिव ट्रेडिशन है वो क्या हो चुका है, इसने क्लास और कास्ट का, यानी कि जाति और क्लास का क्या कर रखा है, जो बैरियर है, जो उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर लिया है। Indeed, the challenge to religious orthodoxy has often come from the spokesman of the socially disadvantaged group। डिसएडवांटेज ग्रुप कौन होते हैं, निम्न जाति के ग्रुप, ठीक है, जो नीची जाति के ग्रुप होते हैं उनको हम डिसएडवांटेजेस ग्रुप कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है,
जैसे कि हमारे स्पेशली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हिंदुइज्म की बात हो रही है, जिसमें क्या होता था, जिसके अंदर कास्टिज्म, जातिवाद और है ना जातिवाद क्या था, बहुत ज़्यादा था, जिसमें ये माना जाता था, फोकस ऑन था, ठीक है। ये क्या बात है, पुराने समय की बात है, अब इतना नहीं रहा है। तो वो क्या है, पुराने ज़माने में क्या माना जाता था कि जो ब्राह्मण कास्ट है वो क्या है, सबसे सर्वपल्ली है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी जात जो है वो क्या है, उनसे बहुत ज़्यादा नीची या फिर और भी ज़्यादा नीची हैं। तो उनका ये मानना था कि सिर्फ जो ब्राह्मण है उन्हीं को किसका हक है, उन्हीं को वाद विवाद करने का या तर्क वितर्क करने का हक है। लेकिन अगर आप पुराने समय में भी देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, ये जो धर्म को लेके जो इनकी रूढ़िवादी सोच है, उस वजह से जो ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप थे, जो ये नीची जाति के लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया, इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया। डिसएडवांटेज इज ऑफ कोर्स अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोल रहा है, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कंपैरेटिव कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो नाम उनको दिया है डिसएडवांटेजेस, वो किसके कंपैरिजन में या फिर क्यों दिया है उसकी वो बात कर रहे हैं। When Brahminical orthodoxy was disputed in the ancient India by the members of other groups, including merchant and craftsmen, the fact that the protesters were often quite affluent should not distract attention from the fact that in context of Brahmin or dominant orthodoxy, they were indeed distinctly underprivileged. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसा कि मैंने कहा था, डिसएडवांटेज इज ऑफकोर्स अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। ये जो डिसएडवांटेज है, इनको डिसएडवांटेज ग्रुप क्यों कहा था, इसके पीछे क्या है, एक पूरा कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि उनका जो कंपैरिजन है वो क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज उनको किससे है, डिसएडवांटेज उनका कंपैरेटिवली ब्राह्मिकल लोगों से है। जो ब्राह्मिकल रूढ़िवादी लोग थे उनका क्या था, वो अपने आप को सर्वोपरि समझते थे, सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इस वजह से जो दूसरी नीची जाति थी उनको क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता था। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। Brahminical orthodoxy was disputed in ancient India by the members of other group. अब क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि अगर हम एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत के समय की बात करें, तो जो अदर ग्रुप्स हैं, जो नीची जाति है जिसके अंदर मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन भी इंक्लूडेड है, उनका ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। The fact that the protesters were often quite affluent should not distract attention from the fact that the context of Brahmin orthodoxy, they were indeed distinctly underprivileged. वो ये बोला जाता था कि कंपैरिजन जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी के लोग हैं उनके कंपैरिजन में जितनी भी नीची या उनसे भी नीची जो जातियाँ थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज, यानी कि उनको किसी भी तरह के फ़ायदे नहीं भी दिए जाते थे। This may be particularly significant in understanding the class basis of rapid spread of Buddhism in particularly in India. और वो बोलते हैं कि शायद यही एक कारण है कि इंडिया में बुद्धिज्म क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। अब क्या हो रहा था, जब ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी, जो ब्राह्मणिकल जो रूढ़िवादी लोग थे, जब क्या होने लगे, लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, लोग उनके खिलाफ उठने लगे, अपनी आवाज़ उठाने लगे, तो ऐसे समय में जो दूसरा रिलीजन था, बुद्धिज्म जैसा रिलीजन था, वो क्या होने लगा, फैलने लगा। क्यों फैलने लगा, क्योंकि ये जो रिलीजन है वो क्या करता है, समानता की बात करता है, लेवलिंग की बात करता है। लेवलिंग कैसे, ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, बुद्धिज्म जो है, उसमें क्या होनी है, उसमें किसी भी तरह की ऊंच नीच नहीं है, जैसे किसमें होती है, जैसे हिंदुइज्म में होती है। ब्राह्मण और जैनिज्म दो ऐसे धर्म हैं जिसमें क्या नहीं है, किसी भी प्रकार की ऊंच नीच नहीं है। तो इस वजह से जब लोग क्या करने लगे, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करने लगे, तो उस समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो ऐसे धर्म थे जो क्या करते थे, लोगों को इक्वल मानते थे, ये क्या होने लगे, फैलने लगे। The undermining of the superiority of priestly caste played quite a big part in this initially rebellious religion movement, which include Jainism as well as Buddhism. अब क्या है, undermining the superiority of the priestly caste। अब वो क्या बोल रहा है कि
ये जो सुपीरियरिटी, ये जो लोग थे ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के लोग थे, उनमें क्या प्रॉब्लम थी, उनमें सुपीरियरिटी प्रॉब्लम थी। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और ये जो कारण था उनका, ये जो सोच थी उनको अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने की, ये जो थी वो क्या था, एक सबसे बड़ा कारण था कि क्या होने लगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म फैलने लगा। It include a leveling feature that is not reflected in the message of human quality for which this movement stood, but is also captured in the nature of the argument used to undermine the claim of superiority of those occupying exalted position. Substantial part of the early Buddhist and Jain literature contains exposition of protest and resistance. ये बोल रहे इट इंक्लूड्स लेवलिंग फीचर। अब ये जो जैनिज्म था और बुद्धिज्म था वो क्यों फैलने लगा, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर लेवलिंग फीचर था। लेवलिंग फीचर यानी कि सब में क्या थी, समानता थी, सब क्या थे, सेम लेवल पे थे। तो इस वजह से ये क्या होने लगा, फैलने लगे। क्यों, क्योंकि ये जो धर्म था वो क्या करता था, ह्यूमन क्वालिटी मैसेज, यानी कि सारे ह्यूमन एक समान है, सारे इंसान एक समान है, ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है वो क्या था, इन दो धर्मों में नज़र आता था। बट इज ऑल्सो कैप्चर्ड इन द नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज टू अंडरमाइन द क्लेम ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ दोज ऑक्यूपाई एक्सल्टेड पोजिशन। और साथ ही साथ क्या था, ये एक तरह से उनका सुपीरियर लोगों के, ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जाने का ये क्या बन गया था, उनके पास एक जरिया बन चुका था। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर कंटेन एक्सपोजिशन ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर उठा के देखेंगे तो उसके जो स्टार्टिंग का एज है, जो स्टार्टिंग के पीरियड है, उसमें आपको प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी है उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अब उनकी जो सुपीरियरिटी है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट अगेन कास्ट डिविजन दैट हैव figured repeatedly in India history with the varying degree of success have made good use of engaging argument to question the orthodox belief. अब इंडिया में जो कास्ट डिवीज़न है वो क्या है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें तो ये जो कास्ट डिवीज़न है वो क्या है, एक बहुत ही पुराना सोशल ईविल है। With varying degree of success have made good use of engaging argument to question the orthodox belief. अब क्या था, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जब से ये जो कास्ट डिवीज़न चलता आ रहा है उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, कब से बहस करते आ रहे हैं, और बहुत सारी तो हमारी क्या रही है, बहस सक्सेसफुल रही है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। Many of these counter arguments are recorded that the opposite to hierarchy was not absent even in the early days of caste arrangement. अगर हम ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये काउंटर, ये जो तर्क वितर्क का आर्ग्यूमेंट्स है, ये तर्क वितर्क की बातें हैं, अगर हम इनको देखें, रिकॉर्ड करें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो कास्ट अरेंजमेंट है वो क्या है, बहुत समय पहले से चला आ रहा है। We do not know whether the author to whom the skeptical arguments are attributed were the real originator of the double express or mere vehicles of exposition to the already established questioning. The prominent presence of this anti-equality argument in this epics as well as the other classical documents give us fuller insight into the reach of argumentative tradition of the monolithic exposition of so-called Hindu point of view can possibly provide. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो लोगों के बीच में कास्ट को लेके अंतर था वो क्या चल रहा है, बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते किस पर्टिकुलर इंसान ने क्या करा, इसके खिलाफ बोलना शुरू किया या इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया। लेकिन जब भी आर्ग्यूमेंट शुरू हुए हैं, जब भी लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ कुछ भी बोला है, तो वो क्या है, वो आज की बात नहीं है, वो क्या है, वो जो व्यूज़ हैं वो क्या चले आ रहे हैं, बरसों से चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन महाभारता भृगु टेल्स भरद्वाजा दैट द कास्ट डिवीजन रिलेट टू डिफरेंस इन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स रिफ्लेक्टेड इन स्किन कलर, भरद्वाजा respond not only by pointing to considerable variation in skin color within every caste, but also by the most profound question: we all seem to be affected by desire, anger, fear, and worry, hunger, labor. How do we have caste difference then? अब यहाँ पे अगेन ऑथर ने क्या करा है, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमें एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल हमें वापस से कहाँ से दिया है, महाभारत से दिया है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, भृगु और भरद्वाजा में क्या चल रहा है,
संवाद चल रहा है, दोनों में बातचीत चल रही है, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किसके बीच में कर रहे हैं? कास्ट डिवीजन रिलेट टू डिफरेंस इन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, के जो कास्ट डिवीजन है वो किससे रिलेटेड है? लोगों के फिजिकल एट्रीब्यूट से, यानी कि उनकी जो शारीरिक एट्रीब्यूट्स है, उनके शारीरिक रूप है, उससे भी क्या हो रहा है? डिवीजन, जो ये विभाजन है वो हो रहा है। अब यहाँ पे जो भृगु होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो कास्ट डिवीजन है वो सिर्फ कास्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि क्या है? कलर के ऊपर भी बेस्ड है। कि क्या है? जो उच्च कोटि के लोग हैं उनका कलर क्या है? साफ है, और जो नीच कोटि के लोग हैं उनका कलर क्या है? गेहुआ या काला है। तो ऐसी बात पे भरद्वाजा जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि सिर्फ कास्ट में ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही कास्ट में भी क्या है? तुमको अलग अलग कलर, अलग अलग रंग के लोग देखने को मिल जाएंगे। क्या अगर ब्राह्मण में भी ऐसा है, सिर्फ ऐसा ब्राह्मण अगर तुम कास्ट ले लो तो उसमें भी तुम्हें क्या दिखेंगे? कुछ लोग गोरे और कुछ लोग काले दिख जाएंगे। बट ऑल्सो बाय द मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन, और फिर वो उससे बोलते हैं कि लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वी ऑल सिम्स टू बी अफेक्टेड बाय डिजायर, कि तुम और हम, यानी कि ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग, सबको क्या आता है? सबको गुस्सा आता है, सबको डर लगता है, सबको दुख होता है, सबको चिंता होती है, सबको भूख सताती है, सबको काम करना पड़ता है। तो फिर हम लोगों में ये कास्ट डिफरेंस कैसे आया? तो फिर हम लोग एक दूसरे से विभिन्न कैसे हुए? There is also genealogical skepticism expressed in another ancient documents, the Bhavsya Purana. Since members of all four castes are children of God, they all belong to same caste. अब वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, और उन्होंने किसका दिया है? भवस्य पुराना का दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो 4 कास्ट हैं, जो मेन कास्ट है, वो कहाँ से आई हैं? वो सब किसके बच्चे हैं? वो सब भगवान के बच्चे हैं। और सब किससे बिलोंग करते हैं? सब एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम फादर, जितने भी इंसान हैं उनका सिर्फ एक ही पिता हैं, जो कौन है? भगवान खुद हैं। एंड चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर कैन नॉट हैव डिफरेंट कास्ट। और वो बोलते हैं कि वो बच्चे जो क्या हैं? एक ही इंसान के बच्चे हैं, जब उनके बाप, जो उनके पिता हैं, वो एक ही हैं, तो उनकी कास्ट, उनकी जाति अलग कैसे हो सकती हैं? This doubt do not win the day, but not are their expression obliterated in the classical account of the debate between the points of view. अब ये जो डाउट्स थे ये क्या नहीं कर पाए? ये तो इस चीज़ को बदल नहीं पाए, लेकिन क्या है? अभी भी इनकी महत्ता है। To look at much later period, the tradition of medieval mystic poets, well established by the 15th century, included exponents who were influenced both by the egalitarianism of the Hindu Bhakti movement and by the Muslim Sufis, and their far-reaching rejection of social barriers bring out sharply the reach of the argument across the division of caste and class. अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? पुराणों की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम पुराणों से थोड़ा आगे बढ़े, थोड़े नए समय में आए, मेडिवल पीरियड में आए, जब पोएट्स जो थे, जो कवि जो थे, वो क्या लिख रहे थे? अलग अलग कविताएं लिख रहे थे। तो आपको देखने को मिलेगा जो ये महान महान कवि है, उन्होंने भी क्या करा है? ये जो सोशल बैरियर्स हैं, ये जो कास्ट को लेके असमानताएं हैं, है ना, लोगों में बैरियर्स जो है कास्ट को लेके, क्लास को लेके, उन लोगों ने क्या करा? ये जो पोएट्स हैं, ये जो कवि है, उन्होंने इन सारे बैरियर्स को, इन सारी इनइक्वालिटी को क्रॉस कर लिया है। ये जो पोएट्स थे जैसे कि कालिदास, इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने हिंदू भक्ति मूवमेंट और मुस्लिम सूफीज मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें क्या दिखेगी? इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेंगी। और इन्होंने इस तरह से क्या करा है? सोशल बैरियर को क्रॉस किया है। Many of these poets come from economically and social humble background. आज जितने भी फेमस पोएट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं, ऐसे कवि हैं जो कहाँ से आए? एक नीची जात से, या फिर एक नीचे धर्म के लोग, नीची जात के लोग हैं। And their questioning of social division as well as of the barrier of disparate religions reflect a profound attempt to deny the relevance of this artificial restriction. और अब जब आप ऐसे लोगों की जो किस्से हैं, एक गरीब घर से आए हैं, अगर आप ऐसे लोगों की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये रियलाइज़ होगा कि इनकी कविताओं में ये अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह से ये जो सोशल
रेस्ट्रिक्शन है, ये जो सामाजिक बंधन इन लोगों ने लगा रखे हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ रिमार्केबल हाउ मैनी ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ दिस हेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ कम फ्रॉम द वर्किंग क्लास। और जब आप ये व्यूज़, ये जो विचार हैं वो अक्सर कहाँ से आए हैं, ये जो विचार हैं वो वर्किंग क्लास यानी कि उस समुदाय से आए हैं जो क्या करती है, जो काम करती है। कबीर परहैप्स द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ देम ऑल वॉज अ वीवर। अब बोलते हैं कबीर जो थे, जो क्या थे, इन सब में सबसे महान थे। उन्होंने किसका काम किया, वीवर का, इन सबको जोड़ने का काम किया है। कबीर जो क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस पोएट है, वो क्या थे, वीवर थे। वीवर क्या होते हैं, जो कपड़े बनाने का, बुनाई का काम करते हैं, वो थे। दादू अ कॉटन कार्डर, दादू जो थे उनका जो प्रोफेशन था, उनका काम जो था वो क्या था, कॉटन कार्डर का काम था। रविदास अ शू मेकर, रविदास जो थे वो क्या थे, जूते बनाने वाले थे। सीना अ बार्बर एंड सो ऑन, और जो सीना थे वो क्या थे, बार्बर थे, नाई थे। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े पोएट्स हैं, फेमस पोएट्स हैं, वो कोई बहुत ऊंची जाति से या फिर बहुत अमीर फैमिली से नहीं आए, बल्कि क्या आए हैं, नीची जाति से या फिर एक आम घर से आए हैं। Also, many leading figures in the movements were women, including the course of the famous मीराबाई। इवन क्या था, ये जो मूवमेंट चल रहा था वो सिर्फ, उसमें सिर्फ मेल्स ही नहीं थे, बल्कि उसमें वुमेंस जो थी वो भी शामिल थी, औरतें भी शामिल थी। और ऑफकोर्स हम मीराबाई को नहीं भूल सकते, जो कहाँ से बिलोंग करती थी, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो क्या करती है, बाद में कृष्ण धर्म अपना लेती हैं। बट ऑल्सो अंदल, दयाबाई, साजोबाई, किस्मा, सीमा अमोंग द अदर्स। और ये क्या है, सिर्फ मीराई बाई जो थे वो फेमस नहीं थे, बल्कि ऐसे बहुत सारी लेडीज राइटर थी जो उस समय लिख रही थी। In dealing with the issue of contemporary inequality, the relevance and reach of argument tradition must be examined in terms of the contribution it can make in today in resisting and undermining this equality. Which characterize so much of contemporary Indian society. अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम आज के समय में इनइक्वालिटी की, असमानता की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन है इसको अभी भी फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन को अपना के कितना ज़्यादा इस बदलाव लाने में क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। It would be great mistake in the context to assume that because of the possible effectiveness of well-tutored and disciplined arguments, the argumentative tradition must in general follow the privileged and the well-educated rather than disposed and deprived. अब वो बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज हम क्या आ चुके हैं, एक न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के आर्ग्यूमेंट सुने जो क्या है, प्रिविलेज लोग हैं, जिनको क्या मिला है, जिनको पढ़ने का और है ना, जिनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है, बल्कि हमें उनकी भी सुननी चाहिए जो क्या है, डिप्राइव्ड है, जिनको अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। Some of the most powerful arguments in Indian intellectual history have in fact been about the lives of the least privileged group. और वो बोलते हैं कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल यानी कि जो मोस्ट बौद्धिक जो तर्क वितर्क आए हैं वो किसकी तरफ से आए हैं, वो लोग अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स की तरफ से ही आए हैं, ऐसे ग्रुप्स की तरफ से आए हैं, ऐसे दलों की तरफ से आए हैं जिन्होंने क्या करा, जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में रहे हैं। डेमोक्रेसी इज पब्लिक रीजनिंग। अब हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी हमारे खुद के जो राज्य है, डेमोक्रेसी है, उसके बारे में बात करेंगे। Does the richness of the tradition of argument make much difference to the subcontinental life of today? अब वो बोल रहे हैं ये जो हमारा ट्रेडिशन है आर्ग्यूमेंट का, क्या वो आज के समय में भी उतना ही कायम है या नहीं है, या फिर आज के समय में उसकी क्या वैल्यू रह गई है। I would argue it does and it great many different ways। वो तो जो अमर्त्य सेन है वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आज भी हमारे लिए क्या है, आर्गुमेंट का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है,
बिकॉज इट शेप आर सोशल वर्ल्ड एंड द नेचर ऑफ आर कल्चर। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या करता है, हमारे सोशल वर्ल्ड को यानी कि हमारी सामाजिक दुनिया को क्या करता है, आकार देने में मदद करता है। एंड द नेचर ऑफ आर कल्चर, और साथ ही साथ ये जो क्या है, हमारा कल्चर का एक भाग है। इट हैज़ हेल्प टू मेक हेट्रोडॉक्सी द नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया। अब क्या है, अब ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर चल रही है, इसी चीज़ के ऊपर चल रही है कि जो लोग हैं यहाँ के, उनको क्या हक दिया है, उनको आर्ग्यूमेंट्स करने का हक है। यानी कि उनको क्या इसका हक है, अपने एक्सप्रेशन का, अपने चीज़ों को बयां करने का हक है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे कार्य के लिए। persistent arguments are important part of public life। क्या है persistent argument? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही जो गवर्नमेंट में निकाली है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए लगातार आर्ग्यूमेंट्स करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे किसान कर रहे हैं आंदोलन, तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या नहीं करेंगे, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, अगर हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, चीज़ों को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट डीपली इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स। हमारी इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, इसके द्वारा इन्फ्लुएंस रहती है, इसका बहुत ज़्यादा असर हमारी पॉलिटिक्स पे पड़ता है। And in particular relevant, I would argue, to the development of democracy in India, the emergence of its secular priorities, the historical roots of democracy in India are well worth considering। अब यहाँ पे जो अमर्त्य सेन है वो क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये इंडिया में जो राजनीति आई है, डेमोक्रेसी आई है, वो किसकी वजह से आई है। कुछ लोगों का मानना है कि वो किसकी देन है, वो जो वेस्टर्नर्स है उसकी क्या है, देन है, उनकी तरफ से हमको दिया हुआ एक गिफ्ट है। लेकिन जो अमर्त्य सेन है वो क्या करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि अगर हम इंडियंस जो है, अगर उनको ये लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वेस्टर्नर्स के द्वारा दिया गया हुआ एक तोहफा है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है। द हिस्टोरिकल रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया आर वेल वर्थ कंसिडरिंग। वो बोलते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी की रूट है वो क्यों है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों आई है, क्योंकि हमारे इंडिया का क्या है, एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है, एक बहुत ही बड़ा पास्ट रहा है। क्योंकि हम लोग किस में थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा राजा के अंडर या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अंडर रहे थे, तो कभी ना तो कभी हमारे यहाँ पे क्या आनी थी, डेमोक्रेसी आनी ही थी। If only because the connection with public argument is often missed through the temptation to attribute the Indian Committee to democracy simply to the impact of British influence. The point at issue, however, is not specific to India only. In general, the tradition of public reasoning is closely related to the roots of democracy across the globe. अब जो मैंने कहा यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी सिंपली टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, कि ये मान लेना कि जो ब्रिटिश है, ये जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, ये ब्रिटिशर्स की देन है, तो ये क्या है, गलत है। दैट इंडिया द पॉइंट ऑफ इशू हाउएवर इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली, इन जनरल। अब बोल रहे सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात करूँ तो क्या है, जो रूट ऑफ डेमोक्रेसी है वो किसकी वजह से आया है, पब्लिक रीजनिंग की वजह से आया है। But since India has been especially fortunate in having long tradition of public argument, the toleration of intellectual heterodoxy, this general connection has been particularly effective in India। अब वो बोल रहा है बिकॉज क्या है, इंडिया में हमेशा से क्या रहा है, आर्ग्यूमेंट्स का ट्रेडिशन रहा है, तो इसने क्या करा है, इसने हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको एक अच्छी तरह से रन करने में, इंटेलेक्चुअली यानी कि बौद्धिक तरह से रन करने में, चलने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। When more than a half a century ago, independent India became the first country in the non-Western world to choose a resolutely democratic constitution, it's not only used what it had learned from the institutional experience in Europe and America, it also drew on its own tradition of public reasoning and argumentative heterodoxy। अब वो बोलता है कि क्या है, more than half a century ago, independent India became the first country।
करीबन आधी सेंचुरी पहले की बात है, जो इंडिया है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी जिसने क्या अपनाया, जिसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। इट नॉट ओनली यूज्ड, इन्होंने क्या किया, जो हमारी इंडिया है उन्होंने यूरोप, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन से, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया है, वहाँ जो उसका आइडिया है वो यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने ना तो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका से आइडिया लिया है, बल्कि हमारा खुद का जो लंबा ट्रेडिशन चला आ रहा है आर्ग्यूमेंट का, उसने भी क्या करा है, उसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नींव देने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द ट्विन पिटफॉल। अब वो बोल रहे हैं कि लेकिन अगर आपको क्या करना है, अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है तो आपको दो डिफ़िकल्टी, पिटफॉल्स यानी कि दो डिफ़िकल्टी को समझना होगा, उसको अवॉइड करना होगा। टेकिंग डेमोक्रेसी टू बी जस्ट अ गिफ्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड दैट इंडिया सिंपली एक्सेप्टेड बट इट कैन बिकम इंडिपेंडेंट and assuming that there is something unique in Indian history that makes the country singularly suited to democracy। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये समझना कि डेमोक्रेसी क्या है, वेस्टर्न का दिया हुआ गिफ्ट है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। और ये सोचना कि क्या है, ये आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया की क्या है, खुद की एक यूनिक हिस्ट्री है, खुद की एक अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास रहा है, जो कंट्री को क्या बना रहा है, जो कंट्री को डेमोक्रेटिक बना रहा है। The point rather is that democracy is intimately connected with the people discussion and interactive reasoning। अब वो बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो किससे कनेक्ट करती है, जो डेमोक्रेसी है उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे, पब्लिक डिस्कशन और इंटरेक्टिव रीजनिंग से है। कि जो डेमोक्रेसी है वो हमें चांस देती है किस चीज़ का, डिस्कशन करने का, किसी भी डिसीजन को लेके अपने मत देने का, और रीजनिंग का, कारण का, लॉजिक का। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से क्या है, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में इतने अच्छे से चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चला आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत टाइम पहले से जो ये आर्ग्यूमेंटिव का ट्रेडिशन चला आ रहा है। ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द वेस्ट। अब बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन है, ये जो पब्लिक डिस्कशन का ट्रेडिशन है वो सिर्फ ये जो पूरे वर्ल्ड में है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, सिर्फ वेस्ट ही ऐसा नहीं है जिसने ये चीज़ अपनाई है। और जब तक आप क्या करोगे, जब तक ये ट्रेडिशन आप चलते रहने दोगे, कौन सा ट्रेडिशन, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया का, आर्ग्यूमेंट्स को ऊपर आने का, आर्ग्यूमेंट्स को समझने का, उसके पीछे की रीजनिंग को जानने का, तब तक जो डेमोक्रेसी है वो क्या करेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी। सो दिस वॉज योर चैप्टर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। थैंक यू।